Hello everyone, good morning. Welcome to the class online lectures of Rishikul. Now, friends, today we are going to discuss about a very important term called programming constructs. Now, before going on to programming constructs, let me first make you understand what is a flowchart. Now, a flowchart is simply a graphical representation of steps. It shows steps in a sequential order by represented by some special symbols such as terminator, processor, document. So there are different shapes for each thing we have to specify on this. Now, first one is terminator. The terminator symbol represents the start or end of the point. Means post here we can write start and we can write. This is the process. Statements can be written here. This represents a document. Next, decision, whether whatever the condition will be there has to be put in here. Any number of data or statements to be right here. This controls the flow of diagram. Now, this is a flow chart where I have done this for addition of two numbers and an iterative flow chart. Now, flow chart of addition of two numbers. Start, read A, read B, sum, AB, print sum, end. Now we have started, then read the instruction A, read the instruction B, find out the sum of AB and then print the sum. In the next, what we have done, iterative means in a loop. It will be repeated in a cycle. So it has started, now condition has been given. If the task, if it is yes, then again come to the condition, again check for the, if it is false, then we can end. Now next is what we have to study is control statements. Now control statements are used to control the flow of execution depending on the specified conditions. Now what are control statements? Control statements are some controls or the statements that we use to control the working of a loop or of a particular sequence of statements. Now there are three types of control statements. Number one is decision making, which we can call it as selection. Next one is iteration and the next one is jump. Now jump statements are break, continue and pass. Let me first go to the decision making. Now what is decision making? Decision making statement used to control the flow of execution of program depending upon the condition. Now decision making statement is used to control the flow of execution depending upon the, it means we have to make choices. What type of choices we have to make? Like I will tell that all the students who are getting marks greater than 80. Now, so we will write there are three things that if marks greater than 80 then this, otherwise do this. So we have to make a selection among them. So there are three types of decision making statements: if statements, if else statement, nested else statement. So now if statements are used where programming conditional statement, that is if proved true, performs a function or displays information. It means we have having a single condition. If it is true, then a particular set of instructions is done. If it is false, another set of instruction is done. Now second is if. We will call it if else, if statements. Now example of if statement is if condition and the statements. Now if else if. Okay. In if else if we are having two conditions, like if this will be this, then other thing will be like that. We have used if and otherwise clause here. If L, instead of else we do write L. So if A is less than 100, as I've taken up the example of marks, if the marks is less than 100, print less than 100, else we can print more than 100. Right? Means for a given statement, for a given condition, we will have two answers. If it is true, then this can be done. If it is false, then the other series of program can be done. Now nested if is if within the if. Now I have multiple conditions. For example, I have days of the week. Okay, remember days of the week. There are 7 days in a week and 8th number cannot be counted as a week. So if 1 is there, then this, 2 is there, then this. If we have to use multiple statements, then we use if else. What we use? If else. Friends, I have told you about the indentation in the previous session. Now indentation plays a very important role here as if condition. Now this is called the indentation. It should be indented in this way, otherwise you will encounter errors and you will not be able to find it why indentation is wrong. By default, our IDE takes this
indentation if you will not move any cursor here and there. Now if day is equal to 1, now here we use for comparison, so Monday. If elif this, remember elif is a single word, we don't have to separate it using different separators. Now friends, moving toward the iteration statements are used to execute a block of statements. Suppose I want to print counting from 1 to 100, so it will be 1 to 100. So it is not possible for me to write counting 1 to 100 every time. So what will I do? I will do the following things, that I will create a loop within the program and it will be executed one after the other. Now there are 3 types of loops: while, for and nested. सबसे पहले हम पढ़ते हैं while loop. While means while a block of statement, as long as given condition is true, will execute, otherwise it will be stopped. Now while, in small braces we have to put condition, then colon is a must part here, then statement or group of statements. Through flow chart, if we go through the while loop, it will be test expression, body of while. Now text expression means condition. Here I will mention 3 things. Must mention 3 things: initialization, text expression, and updation. Now text expression is our what? Text expression is our, yes, it is our condition, right? So while doing the condition, if the condition terminates to false, then it will exit the loop. If it is true, it will repeat for the number of times we have already provided it. So while loop, basically if you study any other language or something, there are 3 kinds of loop you will be studying: do while, and for. In Python we are not having any do while loop. It is not there, as in Python we are having only entry controlled loops. Entry controlled loops are the loops which control the entry of a particular thing. Next, while loop with else. If else is optional here, if I want to use else, then I can use else, otherwise it is not necessary for me to use else. Now friends, I am just letting you with a video which you have to see, that I have taken from some good website, so might be you will be understanding good things from there. Thank you and watch the video, continuing it. हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है एक बार देख लेते हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड व्हेन अ सेक्शन ऑफ कोड में ईदर बी एग्जीक्यूटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स और व्हाइल सम कंडीशन इज ट्रू। सो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको एक सेक्शन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना हो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, या फिर कोई कंडीशन जो कि ट्रू हो उसके लिए। यानी कि एक कंडीशन जो कि ट्रू हो, इस बेस्ड पर एक सेक्शन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहना चाहिए, या फिर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम, जैसे कि 5 बार एग्जीक्यूट हो, 10 बार एग्जीक्यूट हो। तो इस तरीके के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 लूप। पहला लूप है हमारा वाइल लूप और दूसरा है हमारा फॉर लूप। सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं वाइल लूप। वाइल लूप के बारे में जानते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। द वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन until an associated condition returns false। यानी कि ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। यानी कि while लूप में जो भी आप एक्शन लिखेंगे, यानी कि जो भी आप कोड लिखेंगे, उसको वो रिपीट करता रहेगा तब तक जब तक कि इसमें दिया हुआ कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। सिंटेक्स देखिए इसका, while और बिटवीन पैरेंथेसिस आपको कंडीशन लिखना है। बिटवीन पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस देना जरूरी नहीं है, विदाउट पैरेंथेसिस भी आप कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं। सो while कंडीशन कॉलन देना है, देन इंडेंट फॉलो करते हुए स्टेटमेंट्स लिखने। यहाँ आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, यानी कि एक से अधिक स्टेटमेंट भी लिखा जा सकता है इंडेंट को मेंटेन करते हुए। देन आपका यहाँ नीचे रेस्ट ऑफ द कोड होगा। ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, पहले पाइथन इंटरप्रेटर पहले चेक करेगा इस कंडीशन को कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो ये इस स्टेटमेंट को, यानी जो कि कॉलन के बाद लिखा जाएगा स्टेटमेंट, इंडेंट को प्रॉपर इंडेंट को मेंटेन करते हुए कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। देन वापस से ये इसी को फॉलो करेगा, यानी कि फिर से कंडीशन को चेक करेगा। अगर फिर से कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। देन वापस से फिर से कंडीशन को चेक करेगा।
सो ये कंडीशन को तब तक चेक करता रहेगा जब तक कि मतलब ये जो स्टेटमेंट है तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि कंडीशन उसको फॉल्स नहीं मिल जाता। इसको और बेहतर तरीके से इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। एक कंडीशन है, वाइल का कंडीशन है ये, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देन वापस से ये कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन फिर से ट्रू है तो फिर से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फिर से ट्रू है फिर से जब चेक करेगा फिर से अगर ट्रू है तो फिर से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, यानी कि कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, फिर से कंडीशन चेक करो, फिर से ट्रू है फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, फिर से कंडीशन चेक करो, ट्रू है फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन आपका फॉल्स नहीं हो जाता। जैसे कंडीशन आपका फॉल्स होगा आपका ये लूप एग्जिट हो जाएगा और आपका रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। इतना हम लोग क्विकली पहले एग्जाम्पल में देख लेते हैं, देन आगे बात करेंगे। एक बहुत ही सिंपल से पहले हम लोग कोड देखेंगे, वाइल लूप हम लोग पढ़ने वाले हैं। हैज़ कमेंट का काम करता है, जब भी आपको कमेंट लिखना हो पाइथन में तो आप हैज़ के साथ उसकी शुरुआत करते हैं। इसका इस कोड से कोई भी मतलब नहीं होगा, इसका ये एज अ टेक्स्ट माना जाएगा, इसमें कोई भी असर नहीं होगा इस कोड का। सब इस तरीके से पाइथन में कमेंट लिखते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। सो वाइल लूप की अगर बात करें तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिससे मैंने वैल्यू दिया है 1, देन मैं वाइल लिख रहा हूँ। वाइल के बाद हमें यहाँ कंडीशन लिखना है, तो कंडीशन में दे रहा हूँ कि a लेस देन इक्वल 10 है। अगर a लेस देन इक्वल 10 है तो इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इंडेंट प्रॉपर मेंटेन करना है आपको। क्या होगा, a हमारा डिस्प्ले होकर हमें दिखाई देगा और a को हमें यहाँ इंक्रीज़ करना है बाय 1, तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे और a को बाय 1 इंक्रीज़ कर देंगे। देन हमारा यहाँ प्रिंट होगा रेस्ट ऑफ द कोड। इसको रन करने के लिए ये जो फाइल है मेरा operator.py के नाम से है, ये इस फोल्डर में यहाँ शिफ्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से और राइट क्लिक करना है, आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन पावरशेल विंडो हियर का। देन यहाँ पर आप कोड को रन करेंगे, यानी कि पाइथन को रन करेंगे, पाइथन प्रोग्राम को। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं पाइथन और जो हमारे फाइल का नाम है, हमारे फाइल का नाम है ऑपरेटर। देन हमें इंटर प्रेस करना है, ये हमें लूप हमें रन करके दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन हमारा फाइनली रेस्ट ऑफ द कोड। ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे ये 1 से 10 तक हमें एग्जीक्यूट डिस्प्ले करके दिखा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं इस कोड की सहायता से। देखिए a इक्वल हमारा इनिशियली क्या है 1, यानी कि a का वैल्यू हमने रखा हुआ है 1। जब ये वैल्यू पहली बार चलेगा तो ये इस कंडीशन को चेक करेगा। जब ये कंडीशन को चेक करेगा तो ये चेक करेगा कि a यानी कि a में क्या है 1 लेस देन इक्वल 10 है। क्या ये कंडीशन ट्रू है? जी हाँ, a 10 से कम है, इक्वल नहीं है बट कम तो है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कंडीशन हमारा ट्रू है। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि वाइल का कंडीशन ट्रू है, इसीलिए ये कोड एग्जीक्यूट होगा और ये कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि वाइल के अंदर में है। तो हमें प्रिंट a का वैल्यू कितना है 1 है, तो हमें यहाँ 1 डिस्प्ले होकर मिलता है। देन इस कोड की वजह से, ये जो कोड है इस कोड की वजह से क्या होता है, a का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होता है। देखिए a, इस कोड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस कोड को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़ा था कि a + 1 हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना है 1 + 1, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। सो ये कोड जब वापस से वाइल में यहाँ जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा तो a का वैल्यू 1 ना होकर वो a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 2। फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा कि 2 लेस देन इक्वल 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और अब की बार प्रिंट a में क्या अब वैल्यू है 2 है, तो आपको 2 डिस्प्ले होकर दिखाई देता है। देन 2 a + इक्वल 1, यानी कि a का वैल्यू अब कितना है 2 है, यानी कि अब a का वैल्यू 2 है तो 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू अभी करंट वैल्यू कितना है 3। सो वापस से जब ये लूप चलेगा तो a का वैल्यू अब 2 से 3 हो गया, तो 3 लेस देन इक्वल 10। कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा जिसमें कि प्रिंट a करेगा तो a का करंट वैल्यू है 3, तो आपको 3 दिखाई देगा। देन वापस से ये इंक्रीज होगा, अब 3 से ये हो जाएगा पूरा a = 4। वापस से जब जाएगा तो यहाँ आपको मिलेगा 4 लेस देन इक्वल 10। इसी तरीके से 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आपको प्रिंट होकर मिलेगा। 10 इसीलिए मिल रहा है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ इक्वल साइन लिखा हुआ है। जब ये 10 होगा, जब ये 10 लेस देन इक्वल 10 होगा
तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू रहेगा। इस वजह से एग्जीक्यूट होकर आपको ए लास्ट में 10 दिखाई देगा। देन फाइनली ए यहाँ हो जाएगा 10 + 1 यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। जब 11 में ये चेक करने के लिए जाएगा तो इसको यहाँ चेक करने को मिलेगा कि 11 ≤ 10। इस अब की बार ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उस केस में इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ आपको एग्जीक्यूट होकर दिखाई देता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे इस पावर शेल में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसको हटा देता हूँ मैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, देन रेस्ट ऑफ द कोड। ओके, सो ये हमारा गेम है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, देन आपको एक और बार इसको समझाता हूँ। ज़्यादा होने की वजह से हमें ये थोड़ी सी ज़्यादा हमें रिपीटेशन करनी पड़ रही है सेम चीज़, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए अभी मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, a <= 4 लिखा हुआ। 4 लिखें 10 लिखें जो भी लिखें, लेकिन प्रोसेस जो होगा वो तो सेम होगा। सो इस कम वाले प्रोसेस को समझ जाए तो ज़्यादा वाले प्रोसेस का लॉजिक आप अपने आप लगा सकते हैं। कम वाले यहाँ मैंने कम इसीलिए किया ताकि मैं शुरू से अंत तक आपको बता सकूँ विदाउट स्किप किए हुए। सो वापस से इस कोड को मैं रन करता हूँ। देखिए इसको मैंने रन किया तो यहाँ 1 2 3 4 हमें, देन रेस्ट ऑफ द कोड हमें मिल रहा है। ध्यान रखिएगा इस आउटपुट को। अब इस आउटपुट को हम लोग मैनुअली खुद से निकालेंगे यहाँ पर कि कैसे ये हमें आउटपुट मिल रहा है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। सो इनिशियली a = 1, यहाँ चेक होगा कि 1 <= 4। क्या ये कंडीशन ट्रू है? जी हाँ, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज 1 कम है 4 से, कम या बराबर होना चाहिए, तो कम है 4 से, तो हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इंडेंट को ध्यान में रखना है। सो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये प्रिंट करेगा a का जो भी करंट वैल्यू है। a का करंट वैल्यू कितना है? 1 है, तो ये 1 हमें डिस्प्ले होकर दिखाई देता है। देन a यहाँ इंक्रीज हो रहा है बाय 1। इसका मीनिंग होता है, अगर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका मीनिंग होता है a = a + 1, यानी कि a का वैल्यू कितना है? 1 + 1, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर a का वैल्यू हो जाता है 2। सो जब वाइल लूप वापस से कंडीशन चेक करेगा तो a का वैल्यू उसको इंक्रीज हुआ वैल्यू मिलेगा जो कि है 2। तो ये चेक करेगा कि क्या 2 <= 4, ये हमारा कंडीशन ट्रू है, तो बिल्कुल सही है ये, जिसकी वजह से इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। और प्रिंट a का करंट वैल्यू हमारा 2 हो गया, तो प्रिंट a मतलब ये 2 डिस्प्ले करके हमें दिखाएगा। देन जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये कहेगा कि a + 1, यानी कि a का करंट वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 + 1 यानी कि a = 3। इस पॉइंट पे a = 3 हो गया। अभी जब वापस से वाइल कंडीशन को चेक करेगा तो ये कहेगा कि अब a का करंट वैल्यू 3 है, 3 <= 4। ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। जिस बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है, जिसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगा a का करंट वैल्यू कितना है? 3 है, तो आपको यहाँ 3 दिखाई देगा। फिर a + 1 यानी कि बाय 1 इंक्रीज करेगा। अभी करंट वैल्यू a का 3 है और +1 यानी कि a का करंट वैल्यू कितना हो गया? 4। तो इस पॉइंट में a का वैल्यू हमारा है 4। ये वापस से वाइल कंडीशन चलेगा। अब की बार ये हो गया हमारा 4। सो यहाँ चेक करेगा कि 4 <= 4, 4 <= तो नहीं है, बट 4 = 4 है। इस वजह से ये कंडीशन अभी भी हमारा ट्रू है। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन आपका ट्रू है इसीलिए इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसके अंदर का कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो ये a का करंट वैल्यू जो कि 4 है वह डिस्प्ले करके आपको स्क्रीन में दिखाएगा, जो कि होगा 4। इस पॉइंट में जब आएगा a + 1, इस कोड का जब एग्जीक्यूशन होगा तो ये कहेगा कि a का वैल्यू करंट अभी हो गया कितना? 4। तो 4 + 1 इस पॉइंट में a का वैल्यू हो जाएगा 5। जो जब ये वापस से वाइल चलेगा और कंडीशन चेक करेगा तो अब की बार इसको यहाँ 4 नहीं बल्कि करंट वैल्यू जो a का है वह कितना है? 5 है। ये चेक करेगा कंडीशन की क्या 5 <= 4 है? नहीं, ये कंडीशन हमारा इस बार फॉल्स हो गया। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ये हमारा लूप एग्जिट होकर रेस्ट ऑफ द कोड यानी कि इसके बाहर जो कोड होंगे वह एग्जीक्यूट होगा और आपको यहाँ दिखाई देगा रेस्ट ऑफ द कोड। सो यही प्रोसेस है जो हम लोगों ने यहाँ मैनुअली किया, यही हमें यहाँ प्रोग्राम करके दे रहा है पाइथन में बहुत ही ईजिली ये वाला डिस्प्ले करके। होपफुली आपको वाइल का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है और किस तरीके से चीज़ें डिस्प्ले करता है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। और अगर आपको 2 का टेबल चाहिए, 2 4 6 8 इस तरीके से, तो आप उसको वाइल लूप से अचीव कर सकते हैं। कैसे? देखिए, a को इनिशियलाइज कर दीजिए 2 से और यहाँ पर लिख दीजिए 20। 2 से हमें 20 तक चाहिए तो 20 लिख दीजिए और इसको इंक्रीज कर दीजिए बाई 2।
इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ 2 का टेबल मिलेगा। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो ये भी इजी है, उसी तरीके से काम कर रहा है। कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। ये ए का वैल्यू 2, इनिशियली कितना वैल्यू है 2 है। जब ये कंडीशन चेक होता है तो ये कहता है कि 2 लेस देन इक्वल 20। ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है और आपको 2 डिस्प्ले होकर दिखाई देता है। जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये कहता है कि a प्लस इक्वल 2। इसका मतलब होता है a इक्वल a प्लस 2। तो a का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, a का वैल्यू 4 हो गया। तो a का इस पॉइंट में वैल्यू 4 है। जब ये वाइल कंडीशन वापस से रन करेगा तो ये कहेगा कि a का करंट वैल्यू अब कितना हो गया है 4 हो गया। सो 4 लेस देन इक्वल 20। जी हाँ, कंडीशन अभी भी ट्रू है। जो कि ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट ए का करंट वैल्यू कितना है 4, तो आपको यहाँ 4 डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। फिर वापस से a प्लस इक्वल 2 होगा, यानी कि यहाँ पर 2 की जगह अभी कितना हो जाएगा 4, बिकॉज a का करंट वैल्यू 4 है। तो 4 प्लस 2 6, यानी कि करंट वैल्यू 6 हो जाएगा a का अब इस पॉइंट पर, यहाँ पर, जो कि वाइल कंडीशन के पास जाएगा। यानी कि अब यहाँ 4 नहीं है बल्कि यहाँ पर है अब 6। ये कंडीशन फिर से चेक होगा, 6 लेस देन इक्वल 20। जी हाँ, बिल्कुल ट्रू है। देन फिर से प्रिंट ए होगा जो कि आपको 6 दिखाएगा। इस तरीके से बाय 2 इंक्रीज होता जाएगा और आपको ये 20 तक लेकर जाएगा। 20 तक जाने के बाद जब ये कंडीशन चेक करेगा, मान लीजिए कि किसी पॉइंट पर आपका 20 हो गया, ठीक, मान लीजिए कि एक पॉइंट पर ये 20 हो जाएगा। तो 20 लेस देन इक्वल 20, जी हाँ 20 लेस देन 20 तो नहीं है, बट 20 इक्वल 20 है। तो ये कंडीशन ट्रू। प्रिंट ए यानी कि प्रिंट 20 करेगा। देन a प्लस 2 आएगा। a प्लस 2 जब आएगा तो उसको यहाँ पर a का जो वैल्यू है वह मिलेगा कितना 20। सो 20 प्लस 2 यानी कि 22। इस पॉइंट पे a का वैल्यू हो जाएगा 22। जब ये कंडीशन वापस से चेक करेगा तो यहाँ 20 नहीं बल्कि 22 लेस देन इक्वल 20 मिलेगा, जो कि कहेगा कि ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। तो ये पूरा वाइल लूप आपका एग्जिट होगा और ये कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि रेस्ट ऑफ द कोड। तो ये पूरा वाइल लूप इस तरीके से चलेगा और सारे कोड इस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे। होपफुली आपको मैनुअली समझ में आ रहा होगा। वही आउटपुट आपको यहाँ देखने को मिलता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे, सिंपल एग्जांपल्स वाइल लूप के। लॉजिक दिमाग में रखिएगा कि वाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। इसमें जो चीज़ें थी वो ये थी कि एक तो इनिशियलाइज आपको करना पड़ेगा, देन आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, मान लीजिए कि मैंने यहाँ इंक्रीमेंट नहीं लगाया, तो ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगा। a इक्वल 2 है तो a इक्वल 2 2 2 2 2 2 हर बार चलता जाएगा और ये लूप आपका इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, यानी कि लूप कभी भी आपका बंद नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ से इंक्रीमेंट को हटा दिया है। अभी मैं इसको अगर इंटर प्रेस करूँ तो ये 2 2 2 2 2 2 और मेरा एक वक्त में मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सो ये ऐसे लूप में चला गया है जो कि कभी बंद ही नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना अपने प्रोग्राम में। मैंने कंट्रोल C दबाया तो ये मेरा टर्मिनेट हो गया। सो अगर कभी ऐसा होता है तो आप कंट्रोल C प्रेस कर सकते हैं। सो बेसिकली ध्यान रखना है कि आपका एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिस पर कि आपका ये कंडीशन फॉल्स हो, अदरवाइज लूप हमेशा के लिए चलेगा जो कि सिस्टम को क्रैश कर देगा। या फिर आपके एप्लीकेशन में आप यूज़ करते हैं तो वहाँ वह एप्लीकेशन आपका क्रैश हो जाएगा, जो अल्टीमेटली सिस्टम को हैंग कर सकता है। आगे बात करते हैं और हम लोग देखेंगे वाइल लूप विथ एल्स। देखिए पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसमें कहा जा रहा है कि अगर वाइल का कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 में, मतलब कि वाइल के अंदर जो स्टेटमेंट 1 रहेगा वह एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2 जो कि एल्स के अंदर रहेगा वह एग्जीक्यूट होगा। देन आपका लूप एग्जिट कर जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि कंडीशन पहली बार फॉल्स हो तब भी एल्स चलेगा और कंडीशन 2 बार ट्रू होने के बाद जब फॉल्स होगा तब भी आपका एल्स पार्ट रन करेगा। देखिए लिखा कि एल्स पार्ट जो है वो डिपेंड करता है कि कब एग्जीक्यूट हो, लेकिन एग्जीक्यूट होगा। वाइल का कंडीशन पहली बार मान लीजिए कि ट्रू हुआ तो एल्स नहीं चला, दूसरी बार भी ट्रू हुआ तो एल्स नहीं चला, लेकिन कभी तो एक ऐसा पॉइंट आता है वाइल लूप में जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है और कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा वह एल्स पार्ट में चला जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वाइल आपका एक बार भी ट्रू ना हो, यानी कि पहली बार में ही फॉल्स हो गया तो उस केस में आपका एल्स में चला जाएगा। यानी दोनों ही केसेस में आपका एल्स पार्ट रन करेगा ही करेगा। एक पार्ट में जब ट्रू होगा तब कुछ स्टेप के बाद
एल्स आपका एग्जीक्यूट होगा, और एक स्टेप में जिसमें शुरू में ही फॉल्स हो जाए उसमें आपका पहली बार ही आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको ये मेरा जो कथन है जब आप इसका फ्लो चार्ट देखेंगे तब, और फ्लो चार्ट देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तब जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इसका सिंटैक्स देखिए आप कि कैसे इसको लिखना है। सो सिंटैक्स का कुछ इस तरीके से वाइल कंडीशन कॉलन देना है, देन आप यहाँ स्टेटमेंट 1 लिखते हैं, एल्स कॉलन देना है, देन स्टेटमेंट 2 लिखते हैं, देन रेस्ट ऑफ द कोड होगा। देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा एल्स पार्ट। ये कंडीशन फिर से चेक होगा बिकॉज ट्रू है तो फिर से चेक होगा, फिर से ट्रू है तो फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है, उस केस में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बट ये एल्स पार्ट में आकर इसको एग्जीक्यूट करेगा। सो पहली बार ट्रू हुआ, दूसरी बार ट्रू हुआ, तीसरी बार जब फॉल्स हुआ तब तो ये रन करेगा यहाँ पर। या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि पहली बार में ही ये फॉल्स हो गया तो ये आपका रन कर गया। सो 2 बार ट्रू होने के बाद फॉल्स हो या फिर पहली बार फॉल्स हो, ये एल्स पार्ट आपका रन करेगा ही करेगा, ध्यान में रखना है। इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझिए और मे बी बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। एक कंडीशन है जो कि ट्रू हो रहा है तो उसके इसमें स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और फिर वापस से कंडीशन चेक होगा। अगर फिर से कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर फिर से कंडीशन चेक किया जाता है और ट्रू होता है तो फिर से स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से ये बार बार कंडीशन चेक होगा, अगर ट्रू होगा तो बार बार आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब ये फॉल्स हो जाएगा, किसी पॉइंट में ये फॉल्स होगा ही होगा वाइल लूप। सो जब उस पॉइंट में जाएगा और ये फॉल्स होगा तो ये एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें स्टेटमेंट 2 है। देन आपका चूँकि फॉल्स हो गया है, एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट हो गया तो ये आपका लूप एग्जिट होगा और आपका रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें एक सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपका कंडीशन चेक हो रहा है, ये चेक करते ही पहली बार में ये फॉल्स हो गया तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और आपका लूप एग्जिट होगा, रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। एक ये हो सकता है। ट्रू ये हुआ ही नहीं जिससे कि ये बार बार रन करता है, ये पहली बार में ही फॉल्स हो गया और एल्स आपका एग्जीक्यूट होगा। सो गाइस इसको हम लोग देख लेते हैं ज़रा सा पहले कोड में, देन आगे हम लोग देखेंगे कुछ और इसका वाइल लूप का कुछ और टाइप। सो एक वेरिएबल बनाया मैंने जिसमें मैंने लिख दिया है वैल्यू 1। अब इसमें हम लोग वाइल लिखेंगे। वाइल और कंडीशन में दे रहा हूँ कि ए इक्वल लेस देन हमारा मान लीजिए कि है 5। यहाँ मैं 5 दे रहा हूँ, आप 10 भी दे सकते हैं। 5 इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज मुझे समझाने में ज़्यादा लूप करना पड़ेगा इसीलिए। सो कॉलन दिया, कॉलन देने के बाद इंडेंट प्रॉपर मेंटेन करना है और यहाँ लिखना है प्रिंट ए और यहाँ इंक्रीमेंट हम लोग करेंगे तो प्लस ए प्लस इक्वल 1 यानी कि बाय 1 इंक्रीज होगा। देन एल्स पार्ट हमारा यहाँ लिखा है। लेबल ध्यान से देखिएगा कि वाइल के साथ है हमारा एल्स, वाइल के अंदर नहीं है। देन इसमें प्रिंट करेंगे, इसमें प्रॉपर इंडेंट देना है, ये प्रिंट हमारा एल्स के अंदर में होना चाहिए। देन यहाँ हम लोग लिख देते हैं वाइल कंडीशन एग्जीक्यूटेड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने बस ऐसे ही मैसेज के लिए लिखा हुआ ये। देन हमारा जब लूप बंद होगा तो हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। ये क्या है? रेस्ट ऑफ द कोड है। रेस्ट ऑफ द कोड का मतलब है कि इसके नीचे और भी बहुत सारे कोड हो सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगे इस लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद, इस लूप के एग्जिट होने के बाद। ऐसा नहीं कि ये लूप बंद तो हमारा प्रोग्राम बंद, ऐसा नहीं है, ठीक। सो इसको मैं पहले रन करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये 1 लेस देन इक्वल 5, ये कंडीशन हमारा ट्रू है तो हमारा कोड ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और एक पॉइंट पर जब ये हमारा फॉल्स होगा तो हमारा एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा, देन हमारा ये रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। सो अभी हमारा ये ट्रू 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 फॉल्स और रेस्ट ऑफ द कोड ये हमें बताएगा। देखिए ट्रू हुआ तो 1 2 3 4 5 आया, देन हमारा जब फॉल्स होगा 6 पर तो हमें एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है, देन हमारा रेस्ट ऑफ द कोड। इस चीज़ को समझ लेते हैं, देन हम लोग इसमें एक और इसका जो पहली बार ही फॉल्स हो जाए उसको हम लोग देख लेंगे। पहले इसको समझ लीजिए कि कैसे ये पूरा आउटपुट हो रहा है। जब पहली बार ये लूप चला तो ए का वैल्यू था 1, यहाँ लेस देन इक्वल 5। ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 1 लेस देन इक्वल 5 है, तो जी हाँ ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है तो ये रन होता है कोड जो कहता है कि प्रिंट करो ए को, तो ए को प्रिंट कर दिया मैंने, यहाँ लिख दिया 1।
देन ये कोड एग्जीक्यूट होता है, ये कहता है कि a प्लस इक्वल 1, इसका मीनिंग होता है a इक्वल a प्लस 1। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1 यानी कि प्लस 1, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पर हो जाता है 2। क्योंकि इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हुआ है यानी कि स्टेटमेंट ये जो वाइल है हमारा ट्रू था, तो ये वापस से वाइल के पास जाएगा और इसका कंडीशन चेक करेगा। अब की बार ये जब जाएगा तो a का वैल्यू a1 की जगह क्या हो गया है, 2 हो गया है। ये चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल 5, ये क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो जी हाँ ये बिल्कुल कंडीशन हमारा ट्रू है। इसकी वजह से ये एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगा ये a, प्रिंट a, यानी कि a का करंट वैल्यू कितना है 2, तो हमें 2 स्क्रीन पर दिखाई देता है। देन ये एग्जीक्यूट होता है और ये कहता है कि a इक्वल a प्लस 1, तो a का करंट वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस 1 कर दो, 2 प्लस 1 मतलब a इक्वल 3, तो a इक्वल 3 यहाँ पर है। सो वापस से जब ये कंडीशन चेक करेगा तो ये अब कहेगा कि अब ये 2 नहीं बल्कि 3 है, तो a 3 लेस देन इक्वल 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है, जी हाँ ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। जिसकी वजह से वापस से ये एग्जीक्यूट होता है, a अब की बार आपको दिखेगा 3, जब ये एग्जीक्यूट होगा ये वाला तो ये कहेगा कि अब ये 2 नहीं बल्कि 3 है करंट वैल्यू a का, तो 3 प्लस 1 यानी कि यहाँ पर a का वैल्यू 4 हो जाता है, जो कि जाता है इस कंडीशन के पास। अभी कहेगा कि अभी इसका यानी कि a का करंट वैल्यू 3 नहीं है बल्कि a का करंट वैल्यू हो गया है 4, तो 4 लेस देन इक्वल 5, जी हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो ये वापस से रन करता है और a प्रिंट करता है जो कि है हमारा 4। देन हमारा ये एग्जीक्यूट होता है, ये कहता है a प्लस 1, a का करंट वैल्यू हमारा है 4, तो 4 प्लस 1 यानी कि a का करंट वैल्यू कितना हो जाएगा, अब हमारे पास 5 हो जाएगा अपडेट होकर। ये 5 जाएगा यहाँ, वापस से चेक होगा कि क्या 5 लेस देन इक्वल 5 है, 5 लेस देन 5 तो नहीं है बट 5 इक्वल 5 है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हमारा ट्रू और प्रिंट a यानी कि 5। उसके बाद a प्लस 1, a प्लस इक्वल 1 होगा, तो यहाँ पर a का वैल्यू अब 4 नहीं बल्कि 5 है, तो ये 5 प्लस 1 यानी कि 6 हो जाएगा इस पॉइंट में। जब ये वापस से जाएगा तो ये कहेगा कि अब a का वैल्यू 5 नहीं है बल्कि ये हो गया है 6, तो 6 लेस देन इक्वल 5, क्या कि ये कंडीशन ट्रू है, जी नहीं ये कंडीशन अब आपका फॉल्स हो गया। जस्ट बिकॉज ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि फॉल्स होने की वजह से ये एल्स पार्ट में चला आएगा और ये इसको एग्जीक्यूट करेगा और आपको यहाँ पर ये लाइन दिखाई देगा। देन आपका लूप एग्जिट होगा और ये कोड एग्जीक्यूट होकर इसके नीचे आपको यहाँ दिखाई देगा, जो कि यहाँ आप आउटपुट में देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो ये इस तरीके से काम करता है। अभी इसका एक और चीज़ क्या हो सकता है कि a का वैल्यू ऐसा हो, मान लीजिए कि a का वैल्यू हमने 6 दे दिया, तो 6 जब आता है a का वैल्यू तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है, तो पहली बार में ही ये a हमारा 6 हो गया, तो 6 लेस देन इक्वल 5 पहली बार में ही। अभी एक बार भी रन नहीं किया, पहली बार ये रन कर रहा है लूप, तो 6 लेस देन इक्वल 5 ये हमारा फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये डायरेक्ट यहाँ चलाएगा, ये इसको रन नहीं करेगा, डायरेक्ट ये एल्स पार्ट में चलाएगा, आपका ये एग्जीक्यूट होगा और आपका ये एग्जीक्यूट होगा और आपका ये लूप किसी काम का नहीं हो जाएगा बल्कि सिर्फ ये वाला एग्जीक्यूट होगा और आपको स्क्रीन में दिखाई देगा वाइल कंडीशन फॉल्स। एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, मैंने इसको सेव नहीं किया, जरा सेव कर लेता हूँ। सेव किया और मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए वाइल कंडीशन फॉल्स सो एल्स पार्ट एग्जीक्यूटेड रेस्ट ऑफ बी गुड। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब आप एल्स का यूज़ करते हैं। तो इसका एक रियल एग्जांपल कैसे आप हो सकता है, मैं आपको लॉजिक मतलब ऐसे लॉजिक बता देता हूँ कि कब इसका रियल में एग्जांपल मतलब यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई सर्च कर रहा हो कोई नंबर और वो नंबर मल्टीपल टाइम्स हो, एक लिस्ट है मान लीजिए या फिर एक एरे है जिसमें बहुत सारे नंबर हैं, मल्टीपल टाइम्स होंगे, मे बी एरे है, लिस्ट नहीं एरे मानते हैं कि बहुत सारे नंबर हैं, इंटीजर नंबर 10 है, 12 है, 15 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 10 इस तरीके से, और आप 10 को सर्च करना चाहते हैं तो 10 जितनी बार भी उतनी बार आपको डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। देन लास्ट में आपको दिखाई देना चाहिए नो मोर 10 अवेलेबल, ऐसा करके। तो नो मोर 10 अवेलेबल आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जब भी 10 मिलेगा तो वह इसके अंदर मिलेगा और वह आपको 10 जितनी बार भी होगा डिस्प्ले करके जो देखने का कोड होगा वह यहाँ होगा। देन जिस भी पॉइंट ऐसा आएगा कि 10 अब नहीं मिल रहा है या फिर हमारा लिस्ट ख़त्म हो गया तो एल्स पार्ट में चला आएगा, बिकॉज वो फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स पार्ट में चला आएगा और आपको यहाँ बताएगा कि नो मोर 10 अवेलेबल। या फिर हो सकता है कि पहली बार में ही 10 इस लिस्ट में हो ही ना,
तो उस कंडीशन में भी ये फॉल्स हो जाएगा पहली बार में, तो ये डायरेक्ट एल्स में चलाएगा और आपको यहाँ कहेगा कि नो मोर 10 अवेलेबल। सो दोनों ही केस में एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होना ज़रूरी होता है, उसी केस में हम लोग वाइल एल्स का यूज़ करते हैं, अदरवाइज सिंपल वाइल ही भी हमारा सारा काम कर देता है। सो मैंने जो अभी कहा अगर आपको समझ में आया तो उसको आप प्रोग्राम कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। आपको एक सिंपल सा बाइनरी लीनियर सर्च लगाना पड़ेगा, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ईजिली हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग कभी असाइनमेंट क्वेश्चन में देख लेंगे, मैंने इसको मार्क कर लिया है। ओके, सो दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं डालना है। अभी जो इतना मैंने बताया कि वाइल एल्स कैसे काम करते हैं, बस उतना ध्यान में रखिए। वापस से आते हैं पीपीटी में। इनफाइनाइट वाइल लूप हम लोग देखने वाले हैं। सो वाइल ट्रू, जब हम लोग यहाँ ट्रू लिख देते हैं, देखिए पहले क्या होता था, हम लोग कंडीशन लिखते थे, वह ट्रू या फॉल्स हो सकता था, बट अभी हम लोगों ने कीवर्ड ट्रू लिख दिया, यानी कि ये हमेशा के लिए ट्रू है, ये कभी भी फॉल्स नहीं हो सकता। तो इसके अंदर का जो कोड है वह हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा आपको यूज़ नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइट लूप का यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। जैसे कि वाइल ट्रू स्टेटमेंट, और यहाँ एक कंडीशन लगा दीजिए कि कब ये हमारा स्टॉप हो जाना चाहिए लूप। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। देन आपका रेस्ट ऑफ द कोड। तो इसको हम लोग क्विकली देखते हैं प्रोग्राम में, बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या नहीं करना है। वाइल ट्रू इस तरीके से आपको नहीं रखना। अगर मैं ऐसा रखूँ और मैं लिखूँ प्रिंट, और यहाँ कोई भी वर्ड दे देते हैं, या फिर कोई भी आप इंटीजर भी दे सकते हैं। मैंने दिया गेकी सोर्स, और नीचे प्रिंट रेस्ट ऑफ द कोड, और ये रेस्ट ऑफ द कोड कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये लूप हमारा कभी एग्जिट होगा ही नहीं। सो मैंने इसको लिखा वाइल ट्रू, तो ये हमेशा के लिए ट्रू हो गया, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो ऐसा कुछ भी यहाँ लिखा नहीं गया है। सो वाइल ट्रू हमेशा ट्रू होता रहेगा, और ये कोड आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा, और ये कोड कभी भी एग्जीक्यूट होने का इसको मौका ही नहीं मिलेगा, बिकॉज ये रेस्ट ऑफ द कोड तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपका वाइल एग्जिट होता है। सो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद क्लियर कर देता हूँ इसको। देखिए मैंने इंटर प्रेस किया, देखिए ये चल रहा है, चलता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, या फिर मेरा ये एप्लीकेशन हैंग हो जाएगा। सो कंट्रोल सी प्रेस करके मैंने इसको फोर्सफुली स्टॉप कर दिया हुआ है, और हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। सो ये ध्यान में रखना है कि ऐसा आपको नहीं करना है। इसी वजह से कहा जाता है कि इनफाइनाइट लूप को कभी भी यूज़ ही नहीं करना है प्रोग्राम में, वरना अगर ऐसी मिस्टेक होगी तो हमेशा के लिए आपका जो सिस्टम है वो क्रैश ही होता रहेगा, अगर आप बग फाइंड नहीं कर पाएंगे तो। सो इसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ करना है, देखिए एक वेरिएबल बनाया मैंने i = 0, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाइल ट्रू। ट्रू का टी कैपिटल होना चाहिए, ध्यान रखना है। देन i + 1 प्रिंट करना है i का वैल्यू। देन यहाँ एक इफ लगाना है। इफ़ i = 5 है, या फिर इसको कम कर देता हूँ मैं, 3 कर देता हूँ, वरना 5 होगा तो हमें बहुत डिस्कस करना पड़ेगा। अगर इफ़ i = 5, यहाँ कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ़ i का वैल्यू 3 होगा तो क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक इस लूप को बंद कर देगा। ब्रेक के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, फिलहाल के लिए जाने कि ये इस लूप को बंद कर देगा। देन प्रिंट, सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको हम लोग रन करें तो आपको यहाँ मिलेगा कि ये 1 2 3 तक की प्रिंट करेगा। उसका रेस्ट ऑफ द कोड, यहाँ हम लोगों ने ट्रू लिखा हुआ है, बट ये इनफाइनाइट में नहीं गया, ये हमारा 3 तक प्रिंट होकर बंद हो गया। तो इस तरीके से आप वाइल ट्रू करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है अगर आप सही तरीके से यूज़ करेंगे इसका। तो पहले इसका एग्जीक्यूशन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से पूरा काम कर रहा है। इनिशियली i का वैल्यू है कितना, 0, और वाइल ट्रू यानी कि ये हमेशा के लिए ट्रू है, तो हमें इस कंडीशन पे बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसा हमें यहाँ मैनुअली लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये ट्रू है तो ट्रू है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ i + 1 है, यानी कि ये हो गया i = i + 1। ये हम लोग जानते हैं i का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 + 1 यानी कि 1। तो प्रिंट i कितना, 1 प्रिंट कर देगा। देन ये चेक करेगा यहाँ पर कि क्या i का वैल्यू जो कि अभी फ़िलहाल के लिए 1 है,
इक्वल इक्वल 3 है, जी नहीं। 1 इक्वल इक्वल 3 नहीं होता है, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स है, जिसकी वजह से ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ब्रेक। देन ये वापस से हमारा लूप चलेगा, ये तो ट्रू है तो ये तो चलेगा ही। देन वापस से यहाँ पर i का वैल्यू कितना हो गया है, 1 हो गया। अब 0 नहीं, ये 1 है, तो 1 + 1 i का वैल्यू 2, तो प्रिंट i यानी कि प्रिंट 2, तो यहाँ पर आपको 2 दिखाई देगा। फिर से ये कंडीशन चेक होगा कि क्या i जो कि 2 है अब 2 इक्वल इक्वल 3 है, जी नहीं, ये कंडीशन फिर से फॉल्स, तो ये ब्रेक नहीं चलेगा। वापस से वाइल चलेगा, ट्रू है तो वाइल चलेगा ही। आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू हमारा अभी 2 है, तो यहाँ पर 2 + 1 यानी कि 3, तो प्रिंट आई यानी कि प्रिंट 3। अभी जब ये इफ़ चलता है तो ये कहता है कि आई इक्वल इक्वल 3 क्या है, आई का वैल्यू अब कितना, आई का वैल्यू अब हो गया है हमारा 3, तो 3 इक्वल इक्वल 3, जी हाँ, ये कंडीशन अब हमारा ट्रू हो गया। इस वजह से ये ब्रेक हमारा रन करता है। जब ये ब्रेक रन करता है तो ये इस लूप को बंद कर देता है, एग्जिट कर देता है, और आपको ये कोड एग्जीक्यूट होकर दिखाई देता है, रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पर। इस तरीके से आप इनफाइनाइट लूप यानी कि ट्रू वाइल ट्रू को यूज़ कर सकते हैं एक इफ़ स्टेटमेंट लगाकर, जिसमें आप ब्रेक करेंगे एक कंडीशन के तहत। आप यहाँ ट्रू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से एक इफ़ लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, और इस लूप को बंद करना पड़ेगा एक कंडीशन के तहत। वाइल का एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, नेस्टेड वाइल लूप। सो नेस्टेड वाइल लूप का मतलब होता है ये कि वाइल लूप के अंदर जब आप एक और वाइल लूप लिखते हैं तो उसे हम लोग नेस्टेड वाइल लूप कहते हैं, या फिर वाइल लूप का नेस्टिंग करना कहते हैं। सो ये वाइल है, कंडीशन है, देन स्टेटमेंट लिखा, इस वाइल का ये स्टेटमेंट है, और इस वाइल के अंदर एक और वाइल आपने लिखा, और इस वाइल का के अंदर इसका अपना स्टेटमेंट है। इंडेंट को पकड़िएगा कि कहाँ से क्या इंडेंट हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि कौन किसके अंदर में है, कौन किसके एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूट होगा। देन इसका स्टेटमेंट, देन रेस्ट ऑफ द कोड। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ भी स्टेटमेंट लिखना है और यहाँ भी स्टेटमेंट लिखना है जो कि इस कंडीशन के लिए है, इससे ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं। आप चाहें तो यहाँ मत लिखिए, सिर्फ यहाँ लिखिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ मत लिखिए, सिर्फ यहाँ लिखिए, जो आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हैं, या फिर आप दोनों ही जगह पर लिख सकते हैं, आपकी टोटली आपकी मर्जी। बस इतना ध्यान रखना कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये और ये एग्जीक्यूट होगा, और जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। जब ये फॉल्स होगा तो न तो ये एग्जीक्यूट होगा, न तो ये एग्जीक्यूट होगा, और न तो ये एग्जीक्यूट होगा, और जब यही एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये तो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इसको एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करने वाली हैं। एक वेरिएबल i इक्वल 1 लिखा मैंने, और यहाँ एक वाइल लिख रहा हूँ मैं, वाइल i लेस देन 3, लेस देन इक्वल 3 लिख देते हैं। हालांकि ज़्यादा हमें डिस्कस करने की आवश्यकता पड़ेगी, बट कोई नहीं। सो वाइल i लेस देन इक्वल 3, और यहाँ हम लोग प्रिंट करेंगे आउटर लूप, कॉमा देकर i में जो भी वैल्यू होगा वो हमें डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। देन i को हम लोग इंक्रीज़ कर लेंगे +1, और एक और वेरिएबल बना रहा हूँ मैं इसके अंदर, j इक्वल 1। देन इसके अंदर एक और वाइल, यानी कि इस वाइल के अंदर एक और वाइल जो कि कहेगा j लेस देन इक्वल 5, और इस वाइल के अंदर में हम लोग प्रिंट करेंगे इनर लूप j में जो भी वैल्यू होगा। देन यहाँ पर j की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा। देन फाइनली हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे रेस्ट ऑफ द कोड। सो ये आउटर लूप प्रिंट होगा जब हमारा ये वाला लूप चलेगा, ये इनर लूप प्रिंट होगा जब हमारा ये वाला लूप चलेगा। इसी को हम लोग, ये जो आउटर में दिख रहा है इसको हम लोग आउटर लूप कहते हैं, और ये जो लूप दिख रहा है इसको हम लोग इनर लूप कहते हैं। सेव कीजिए इसको, सेव करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे यहाँ पर तो यहाँ आपको दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कि इतना हमें डिस्कस करने की आवश्यकता पड़ेगी, इतनी बार हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो। नहीं, देखिए पहले आउटर लूप चलेगा, फिर इनर लूप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसके बाद फिर से आउटर लूप दूसरी बार चलेगा, फिर इनर लूप चलेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर आउटर लूप तीसरी बार चलेगा, फिर इनर लूप चलेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। देन हमारा वाइल लूप एग्जिट होगा, दोनों का दोनों ही। देन हमारा रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। सो हमें ये पूरा एग्जीक्यूशन समझना है यहाँ पर, और इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हमें वक्त लगेगा। सो डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। यहाँ जब i का वैल्यू पहली बार इनिशियली 1 है तो यहाँ 1 होगा लेस देन इक्वल 3,
इससे क्या होगा, इससे हमारा कंडीशन ये ट्रू हो जाएगा और ये कोड एग्जीक्यूट होगा। जब ये कोड एग्जीक्यूट हो तो ये कहेगा कि आउटर लूप आई में क्या है 1 है तो 1। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा तो ये कहेगा कि आई इक्वल आई प्लस 1। आई में क्या है, आई में 1 है तो 1 प्लस 1 यानी कि आई का वैल्यू 2 हो गया। ध्यान रखिएगा कि आई का वैल्यू हमारा 2 हुआ है अभी यहाँ। फिर ये कोड भी एग्जीक्यूट होगा तो ये कहेगा जे इक्वल 1 यानी कि जे को हम लोगों ने इनिशियलाइज किया 1 से। फिर ये हमारा रन करेगा जो कि कहेगा कि वाइल जे लेस देन इक्वल 5, तो जे का वैल्यू कितना है 1, लेस देन इक्वल 5, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। और ये कहेगा कि इनर लूप जे का वैल्यू, तो जे का वैल्यू कितना है 1, तो इनर लूप जे का वैल्यू जो कि 1 स्क्रीन पर हमें मिल गया। देन जे का वैल्यू इंक्रीज होगा, जे इक्वल जे प्लस 1। जे का कितना वैल्यू है 1 है तो 1 प्लस 1 यानी कि जे का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 2। और यहाँ से ये इनर वाइल फिर से चलेगा, बिकॉज इनर वाइल तब तक चलेगा जब तक कि ये हमारा बंद नहीं हो जाता यानी कि फॉल्स नहीं हो जाता। जब इनर वाइल हमारा फॉल्स होगा तभी ये वापस से आउटर वाइल में जा पाएगा। सो इनर वाइल के फॉल्स होने का वेट करना पड़ेगा इस आउटर वाइल को। सो आउटर वाइल एक बार चला, देन इनर वाइल चला। अब इनर वाइल ही हमारा चलता रहेगा तब तक जब तक कि ये फॉल्स नहीं हो जाता। सो यहाँ जे का वैल्यू 2 है हमारा और ये इनर वाइल फिर से गया चेक करने के लिए कंडीशन, तो ये 2 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन ट्रू है। इनर लूप जे का वैल्यू कितना है 2, तो आपको 2 डिस्प्ले होकर दिखाई देता है। यहाँ जे का वैल्यू फिर से इंक्रीज होता है, जे का वैल्यू 1 से 2 हो गया था तो 2 प्लस 1, अभी जे का वैल्यू यहाँ कितना हो गया है 3 हो गया। ये वापस से इनर लूप चलेगा, जे का वैल्यू है 3 तो 3 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन ट्रू, तो फिर से ये चलेगा, फिर से आपको इनर लूप 3 दिखाई देगा। देन जे का वैल्यू यहाँ 2 से 3 प्लस 1 यानी कि 4, और ये 4 जाएगा यहाँ पर यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा 4 लेस देन इक्वल 5। ये कंडीशन अभी भी ट्रू है तो आपको फिर से इनर लूप 4 दिखाई देगा। यानी यहाँ जे का जो वैल्यू पहले 3 था अभी 4 हो गया, तो ये 4 प्लस 1 यानी कि अब ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 जाएगा यहाँ यानी कि 5 लेस देन इक्वल 5। जी हाँ, कंडीशन हमारा ट्रू है तो प्रिंट होगा इनर लूप जे का करंट वैल्यू जो कि है हमारा 5। देन यहाँ पर 4 की जगह 5, तो 5 प्लस 1 6, ये 6 वाइल में जाएगा, यहाँ चेक होगा 6 लेस देन इक्वल 5। अब की बार ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाता है। जब ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता बल्कि ये वाइल लूप हमारा एग्जिट होता है। सिर्फ ये इनर वाइल लूप हमारा एग्जिट होता है और हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है इस आउटर वाइल लूप के पास। आउटर वाइल लूप के पास जब कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है तो आई का जो वैल्यू था कितना था 2 था, तो यहाँ 1 से ये 2 हो जाएगा। ये कंडीशन चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल 3 क्या कंडीशन ट्रू है। जी हाँ, बिल्कुल ट्रू है, इसलिए ये एग्जीक्यूट होगा और आपको आउटर लूप आई का करंट वैल्यू 2 दिखाई देगा। फिर ये चलेगा, जब ये चलेगा तो आई प्लस इक्वल 1 यानी कि आई 2 प्लस 1 यानी कि आई का वैल्यू हो जाएगा कितना 3। ये ध्यान में रखना है बिकॉज ये लेट से आएगा। फिर से जे का वैल्यू 1 हो जाएगा इस कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद। थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ। सो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो जे का वैल्यू फिर से रीसेट होकर 1 हो जाएगा। फिर ये वाइल चलेगा, देन 1 लेस देन इक्वल 5, ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये चलेगा। फिर ये कहेगा इनर लूप जे का करंट वैल्यू कितना है 1 तो 1, और ये कहेगा जे इक्वल जे प्लस 1 यानी कि जे इक्वल जे प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि जे का वैल्यू कितना 2 यहाँ पर, और ये 2 जाएगा इस इनर लूप के पास। तो जे का वैल्यू कितना हो गया है 2 हो गया है, 2 लेस देन इक्वल 5 प्रिंट करेगा जे का वैल्यू आई एल यानी कि इनर लूप पर जे का वैल्यू 2। तो फिर से ये इंक्रीज होगा 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, ये 3 जाएगा यहाँ, फिर 3 लेस देन इक्वल 5, फिर आपका इनर लूप 3 और इसी तरीके से इनर लूप 4 5 6 7 और आपका ये पूरा का पूरा ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा इसी तरीके से बार बार रिपीट होकर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का देखा, फिर अभी हम लोग यहाँ से यहाँ तक चल रहे थे, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, बट वही सिमिलर तरीके से ये यहाँ तक चलेगा। देन फिर से एक बार और 3 चलेगा तो कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा आउटर लूप का। आपको आउटर लूप 3 का कंडीशन ट्रू होगा। देखिए यहाँ
के बाद से कैसे एग्जीक्यूट होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आई का वैल्यू हमारा 3 रहेगा तब। तो कुछ चीज़ें मैंने स्किप की। यहाँ आई का वैल्यू हमारा 3 मान लीजिए कि है, आ गया है लूप चलते चलते। तो 3 लेस देन इक्वल 3 ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये हमें दिखेगा आउटर लूप 3। देन ये कंडीशन हमारा चलेगा तो 3 है तो आई का वैल्यू 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। फिर जे का वैल्यू 1 तो ये चेक करेगा जे = 5। तो यहाँ से हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा बार बार और हमें इनर लूप 1, इनर लूप 2, इनर लूप 3 और इनर लूप 4, इनर लूप 5 एग्जीक्यूट होकर दिखेगा ये वाला बार बार। देन एक वक्त में ये हमारा एग्जिट हो जाएगा ये इनर लूप और हमारा कंट्रोल चला जाएगा आउटर वाइल के पास। जब कंट्रोल आउटर वाइल के पास जाएगा तो 3 की जगह ये हो जाएगा आई का वैल्यू 4 था तो 4 हो गया। ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 4 लेस देन इक्वल 3 है, नहीं, अभी की बार ये फॉल्स हो। जबकि ये फॉल्स हो जाता है तो इनमें से कोई भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होता और आपको आपका लास्ट जो आउटपुट होगा, जो आपका लास्ट, अगर आप देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में पावर शेल में तो आपको यही लास्ट में दिखाई देगा कि आउटर लूप 3 देन इनर लूप 1 2 3 4 5 और ये पूरा लूप बंद होने के बाद आपको रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होकर दिखाई देगा। ओके, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक का कोड। ये वाला हम लोगों ने भी लास्ट में डिस्कस किया। बीच में सिर्फ मैंने स्किप किया है ये 3 चीज़, ये इतना एग्जीक्यूशन। तो आई होप कि आपको पूरा ये नेस्टेड वाइल लूप ठीक से समझ में आया होगा। आप इसको, मैंने तो स्किप किया, आप स्किप मत कीजिए, आप पेन पेपर पकड़िए और इसको पूरे लॉजिक को लिखिए मैनुअली, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, सो जो मैंने बताया उसी सीक्वेंस में इसको एग्जीक्यूट करवाते जाइए मैनुअली पेन पेपर में और आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में एकदम स्कैन कर लेंगे। सो गाइज, ये इसी के साथ हमारा वाइल लूप का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। आई नो वीडियो बहुत लंबा बन रहा है बट मैं डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज कुछ लोगों का पाइथन लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग C++, जावा नहीं सीख रहे, डायरेक्ट पाइथन सीख रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इतनी डिटेल में चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।